Good afternoon, dear kids. Today I am taking your 14C, problem 11. So this is your exercise 14C, question number 11, which says find the equation of a straight line passing through origin. So there is straight line which is passing through origin. So origin is always 0, 0. And the point of intersection of the lines x plus 2y is equal to 7 and x minus y is equal to 4. My dear kids, whenever you have to find the point of intersection दो इक्वेशंस का आपको बोला है तो कैसे करेंगे. तो जैसे आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन आता है तो यू हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन साइमल्टेनियसली एंड फ्रॉम देयर यू विल गेट x and y. So that will be point of intersection. Got my point clear? How you will find the point of intersection? By solving them simultaneously. Once you got the point of intersection, in this problem point of intersection you will get 5 and 1. So you got 5 and 1 here. What you have to find is, you have to find the slope. And in my previous video also, I said you when the points are given to you, what you have to do? You should have slope and you should have one point, and then you can go for the formula y minus y1 is equal to m x minus x1 to find the equation of that line. Yes, my dear kids, but here slope is missing. How you will find the slope? Yes, slope formula you know very well. It is y2 minus y1 upon x2 minus x1. आपके पास ये रखो x1, y1, x2, y2. Put in this formula and get the value of slope. जैसे ही आपके पास slope आ जाता है मतलब m की वैल्यू आ गई, और यहाँ पे आपको y1 और x1 0 0 ना यूज़ करके 5 और 1 यूज़ कीजिए यहाँ पे इक्वेशन में and get a nice equation. Is that clear? Problem number 12 we have, in a triangle ABC, the coordinates are given to you. So you have a triangle, this is A, B, C. Coordinates are given 4, 7, minus 2, 3 and you have 0, 1. In this case what we have to do, find the equation of median through A के तरफ से median आपको find करना है, that is midpoint आपको find करना है. Also find the equation of line through vertex B and parallel to AC. यहाँ पे जैसे last problem in my last video I have seen such kind of problems. अगर D का आपको AD का आपको equation find करना है, you have to find the equation of AD. For that you should have the slope of AD. The very important point of any equation is to have a slope. If you are not having a slope, you will not be able to find the equation. So you have to get the value of slope. But how you will find the slope if you do not have D के coordinates? So how to find D के coordinates? You know very well D is a midpoint. So what we will do, if it is a midpoint, what we have to do is D को हम लोग find करेंगे कैसे? x और y coordinates लगा दो, और x is equal to minus 2 plus 0 upon 2 and y is equal to 3 plus 1 upon 2. From there you will get coordinates of D. Once you got the coordinates of D, what you will do my dear kids? AD आ गया, दोनों coordinates हैं आपके पास, इसका slope find कर दो. I'll tell you what D के coordinates आपके पास आएंगे. D के coordinates will be, I think it will be minus 1, 2. Am I correct? Yes. So you will get minus 1, 2. So that is minus 1, 2 आपके पास D के coordinates आ गए. A के coordinates आपके पास हैं 4 और 7. तो क्या आप coordinates के थ्रू slope नहीं find कर सकते? कर सकते हैं. क्या है slope का formula? y2 minus y1 upon x2 minus x1. डाल दो आपका ये x1, y1, x2, y2, यहाँ उल्टा भी किया तो no problem. You will get the slope properly. So you got the slope as 1. Once you got the slope my dear kids, उन्होंने बोला है AD का इक्वेशन बनाओ. ठीक है, तो AD का इक्वेशन कैसे बनेगा? M की वैल्यू आ गई, इन दोनों में से उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं AD के जो पॉइंट्स हैं A और D, उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनमें से कोई भी एक पॉइंट ले लो, उसके वैल्यूज़ ले लो एज x1 और y1. ठीक है, और आपके पास स्लोप तो आया ही है, m की वैल्यू 1 आ गई, x1 y1 इन दोनों में से कोई भी ले लो, आंसर सेम ही आना है, डोंट वरी. ओके, वंस यू गॉट दैट यू कैन यूज द फॉर्मूला फॉर स्लोप, दैट इज y2 minus y1 is equal to m x2 minus x1. Am I clear with this? सॉरी, मैंने यहाँ पे x2 x1 लगा दिया, आपके फॉर्मूला में मैंने आपको ये नहीं सिखाया है. मैंने आपको बताया y minus y1 is equal to m x minus x1. ठीक है, y1 x1 डाल दो, m डाल दो और एक इक्वेशन बनाओ. याद रखना इक्वेशन में x और y तो होने ही है ना,
तो x और y को रखना है, बाकी x1 और y1 की वैल्यूज डाल देनी है। क्लियर? प्रॉब्लम नंबर 13 विच सेज ABC आर द कोऑर्डिनेट्स A is 0, 3, B is 4, 4 and C is 8, 0. Now find the equation of line through A and perpendicular to BC. आप एक ट्रायंगल बना रहे हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू A एंड परपेंडिकुलर टू BC, तो ये ABC हुआ, इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। आपको सबके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, तो यूज़ द कोऑर्डिनेट्स, राइट द कोऑर्डिनेट्स। अब यहाँ पे D लगा दिया, परपेंडिकुलर है। माय डियर किड्स, अब हम लोग को फाइंड करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन AD। तो फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन AD। तो जब भी मैंने बताया कि जब भी हम इक्वेशन बना रहे हैं तो स्लोप सबसे एसेंशियल है। स्लोप कहाँ से लेकर आएंगे? AD का। उसके लिए तो D भी कोई मिड पॉइंट नहीं दिया गया है, तो क्या करेंगे? BC का स्लोप निकाल देंगे। गेटिंग माई पॉइंट? वी विल यूज स्लोप ऑफ BC। एंड व्हाट इज BC का स्लोप? BC का स्लोप आप इजीली निकाल सकते हो, कौन से फॉर्मूला से? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। वहाँ से आपके पास आ जाएगा BC का स्लोप। जैसे ही आपके पास BC का स्लोप आ गया, जो कि 1 आने वाला है, व्हाट यू विल डू, यू कैन यूज़, अब BC का स्लोप 1 आया है, लेकिन हमको किसका स्लोप चाहिए? AD। हमको पता है दैट AD इज़ परपेंडिकुलर टू BC। तो मैंने आपको बताया था कि जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनके स्लोप्स इक्वल होते हैं, बट जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो उस केस में स्लोप ऑफ वन लाइन मल्टीप्लाइड बाय स्लोप ऑफ अदर लाइन इज ऑलवेज इक्वल टू -1। दैट इज BC का स्लोप इंटू AD का स्लोप इज -1। हमारे पास BC का स्लोप मतलब m1 है, लेकिन AD का स्लोप हमारे पास नहीं है। सो व्हाट विल बी AD का स्लोप नाउ? AD का स्लोप विल बी -1 एंड देन आई एम सॉरी, आई गेस यहाँ पे -1 आया है स्लोप, सो -1 इंटू -1, ओके 1 मिनट, आई एम मिस्टेकिंग, -1 डिवाइड बाय -1, सो आंसर इज 1। सो यू गॉट द स्लोप ऑफ AD एज 1। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर? जैसे ही आपके पास स्लोप की वैल्यू आ गई, मतलब m की वैल्यू आ गई, मैंने आपको कहा था कोई भी कोऑर्डिनेट्स यूज़ करो, चाहो तो A के कोऑर्डिनेट्स यूज़ कर दो, दैट इज़ 0 and 3। उनको क्या लगा दोगे? x1 और y1। आई बात समझ में? और हम लोग के इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला क्या है? इक्वेशन ऑफ अ लाइन का फॉर्मूला क्या है? y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1। इसमें डालो m की वैल्यू 1, x को x ही रखो, x1 डालो 0, y को y रखो, y1 डालो 3, और यहाँ से आपके पास एक अच्छा सा इक्वेशन आ रहा है। गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर? yes, so you got y minus x is equal to +3। you can keep it like this। स्टैंडर्ड फॉर्म से करना है नहीं, यू कैन कीप इट लाइक दिस। स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पे हमेशा y रखते हैं और राइट हैंड साइड में हम लोग हमेशा x रखते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ये आता है, क्योंकि आपने हमेशा से फॉर्मूला सुना है y इज इक्वल टू mx प्लस c। सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ राइटिंग द आंसर्स। ओके, इज दैट क्लियर? यू वांट टू नोट इट डाउन? सिर्फ ध्यान ये देना है कि स्लोप आपके इक्वेशन ऑफ लाइन में कोई भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। यू हैव टू जस्ट रिमेंबर दैट फाइंडिंग एनी इक्वेशन ऑफ लाइन यू विल नीड 1 पॉइंट एंड 1 स्लोप। पॉइंट के 2 कोऑर्डिनेट्स मतलब x1 और y1 और एक m की वैल्यू स्लोप। अगर वो आपके पास है तो आपका पॉइंट, आपका इक्वेशन ऑफ लाइन निकल जाएगा। अब ये होता है कि आपको वो पॉइंट्स कहाँ से आएंगे या वो आपको स्लोप कहाँ से आएगा, दैट इज द थिंग। मेन प्रॉब्लम विल बी दैट। Then you have problem number 14। Find the equation of perpendicular drop from point -1 2 on the line joining। वही है, सेम है, ट्रायंगल के नाम पे इन लोग ने पॉइंट फ्रॉम द वर्टेक्स एंगल ड्रॉप फ्रॉम दिस, तो उस पर कोई घबराने की बात नहीं है। सिमिलर प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 13 जैसा। सो प्रॉब्लम नंबर 14 विल बी योर होमवर्क। प्रॉब्लम नंबर 15 विल ऑल्सो बी योर होमवर्क, क्योंकि जैसे ही मैंने आपने देखा था कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक फॉर्मूला y इज इक्वल टू mx प्लस c, स्पेशली व्हेन c दैट इज y इंटरसेप्ट वैल्यू इज गिवन टू यू एंड स्लोप इज गिवन टू यू। इन दैट केस यू विल यूज सच काइंड ऑफ फॉर्मूला। ठीक है, तो जैसे ही 15 प्रॉब्लम आप देखोगे तो आपको दिया हुआ है y इंटरसेप्ट। ओके,
अच्छा 15 प्रॉब्लम का फर्स्ट देख लेते हैं। एक्स इंटरसेप्ट दिया हुआ है 5 एंड वाई इंटरसेप्ट दिया हुआ है क्या 3। अब ध्यान दो, एक्स इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है कि एक्स के यहाँ पे जो वैल्यू है, तो यहाँ पे जो वैल्यू है मतलब वो वैल्यू होगी 5,0, ये एक्स इंटरसेप्ट होता है। और वाई इंटरसेप्ट ये है, तो अगर मेरी वाई इंटरसेप्ट 3 दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा 0,3। आ रही बात समझ में? तो आपके दो पॉइंट्स कौन से हो गए 0, 3 एंड 5, 0। और आपको इन दोनों पॉइंट्स के थ्रू एक लाइन पास कर रही है और उसका इक्वेशन निकालना है। गेटिंग मैम? जैसे आपके हाथ में दो पॉइंट्स आ गए तो आपको निश्चिंत हो जाना है, बिकॉज दो पॉइंट्स में से आप बहुत कुछ निकाल सकते हो। जैसे आपके दो पॉइंट्स और उनके कोऑर्डिनेट्स आ गए तो आप स्लोप निकाल सकते हो। y2 माइनस, इनको x1 डाल दिया, इसको y1 डाल दिया, इसको x2 डाल दिया, इसको y2 डाल दिया और स्लोप निकाला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से। वहाँ से आपके पास स्लोप की वैल्यू आ जाएगी और इन दोनों कोऑर्डिनेट्स में से किसी एक को x1 y1 बना, या अगर आपको दिक्कत हो रही है तो जिसको आपने x1 y1 बनाया है उसी को रहने दो x1 y1, ठीक है, वो लो और अपना स्लोप लो m और ये फॉर्मूला ले लो y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। गेटिंग माई पॉइंट क्लियर? तो सिर्फ ध्यान ये देना है कि जब भी आपका x इंटरसेप्ट दिया हुआ है तो y वैल्यू 0 होगी, y इंटरसेप्ट दिया हुआ है तो x वैल्यू 0 होगी। इस तरीके से दो पॉइंट्स आ जाएंगे। जैसे ही दो पॉइंट्स आ जाते हैं स्लोप यू विल फाइंड इट स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्लियर? सो 15th entire will be your homework. I'll jump on to 16th which says find the equation of line whose slope is minus 5/6। तो स्लोप आपको दिया हुआ है -5/6 और आपको दिया हुआ है एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट का मतलब एक्स इंटरसेप्ट 6 दिया हुआ है तो इसका मतलब 6,0 दिया हुआ है। तो आपके पास बहुत ही इजीली ये m दिया हुआ है और ये आपको x1 y1 दिया हुआ है और आपके पास तो आपको पता है y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। इक्वेशन फाइंड करना है तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन का फॉर्मूला ये है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन का फॉर्मूला ये है। गेटिंग माई पॉइंट क्लियर? नाउ y माइनस y1, वेयर इज y1 0 इज इक्वल टू m हो -5/6, x माइनस x1 तो x माइनस 6, ठीक है। इसको यहाँ ले जाओ तो इट विल बी 6y इज इक्वल टू -5x प्लस 30, ठीक है। ऐसे रखना है तो ऐसे भी रख सकते हैं। क्लियर? प्रॉब्लम नंबर 17 वी हैव problem number 17th. In that we have find the equation of line with x intercept 5 and point -3 2। x intercept कितना दिया हुआ है? x intercept दिया हुआ है 5, that means 5,0 आपका पॉइंट हो गया और दूसरा पॉइंट दिया हुआ है -3,2। ईजी, तो इसको आप ले लो x1 y1, इसको ले लो x2 y2, अच्छे से स्लोप निकालो। स्लोप है आपका y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये स्लोप निकलने के बाद आपको m की वैल्यू मतलब आ गई, ठीक है। जैसे m आपके पास आ गया, x1 y1 है, आपका फॉर्मूला फॉर इक्वेशन कौन सा यूज़ करोगे? दैट इज y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। बहुत ही बेसिक चैप्टर है, यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल। क्लियर? प्रॉब्लम नंबर 18 पे आते हैं। प्रॉब्लम नंबर 18 says find the equation of line through 1 3 and making an intercept of 5 on y axis। तो आपको समझ में आ गया, y इंटरसेप्ट दिया हुआ है तो इसके पॉइंट्स होंगे 0,5। y दिया हुआ है तो x 0 होगा, x इंटरसेप्ट दिया हुआ है तो y 0 होगा। सो 18 यू कैन डू इट ऑन योर ओन। I'll jump on to 19 which says find the equation of line passing through point -2, 0 and equally inclined on to the coordinate axis। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब क्या होता है? देखो, जैसे ये मेरे कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मेरे कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं। इक्वली इंक्लाइंड मतलब कुछ इस तरीके से यहाँ पे भी 45 डिग्री बना रहा है और इसके साथ भी 45, एक्स एक्सिस के साथ भी 45 डिग्री बना रहा है और वाई एक्सिस के साथ भी 45 डिग्री बना रहा है। दिस इज कॉल्ड एज इक्वली इंक्लाइंड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट क्लियर? ठीक है, तो अगर आप मैंने इसको डाल दिया ए और बी, ठीक है। अब हम लोग को क्या फाइंड करना है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू -2 0 एंड इक्वली इंक्लाइंड टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ओके, सो नाउ व्हाट वी विल डू इज, एज आई सेड यू, कि आप एक्स एक्सिस के थ्रू, एक्स एक्सिस के साथ इंक्लाइनेशन जो होता है, दैट इज एक्स एक्सिस के साथ इंक्लाइनेशन एंगल क्या बन रहा है इसका? 45 बन रहा है,
ठीक है, तो हम लोग लेंगे tan 45 और उसकी जो वैल्यू आएगी दैट विल बी कॉल्ड एज अ स्लोप। शायद ये हम लोग के प्रीवियस वीडियो में वी हैव डिस्कस्ड ऑल दिस स्टफ। सो यू गॉट द स्लोप एज 1। ठीक है, पॉइंट तो आपको दिए हुए हैं -2, 0, तो ये x1 y1। स्लोप आपके पास आ गया m, तो क्या आप फॉर्मूला में यूज़ नहीं कर सकते? हाँ कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक और मैं बताऊंगी कि अगर आपका ग्राफ इस तरीके से है तो ये आपके +10 में आता है, लेकिन हो सकता है कि आपका ग्राफ इस तरीके से हो, इक्वली इंक्लाइन, तो ऐसे भी जा सकता है। तो ये आपका यहाँ से आपका 45 और यहाँ से आपका 45, फिर उस केस में आप क्या करोगे? सो इन दैट केस व्हाट यू विल डू इज़, आपको थोड़ा सा नेगेटिव में जाना पड़ेगा और उस समय आपको, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के नेगेटिव साइड टूवर्ड्स द लेफ्ट एंगल बना रहा है, तो हम लोग -10 थीटा लेते हैं। ठीक है, तो -10 45 लेंगे, सो दैट विल बी -1। आर यू गेटिंग माई पॉइंट क्लियर? तो -1 के साथ m-1 लेना है उस समय पे, और पॉइंट के वैल्यू आपको -2 0 दिए हैं, मतलब x1 y1 ये लेने हैं, और फॉर्मूला वही यूज़ करना है, y - y1 = mx - x1। इजंट इट ईजी? यस। प्रॉब्लम नंबर 20 डायरेक्टली होमवर्क ले लो, कुछ भी नहीं है उसमें। प्रॉब्लम नंबर 21 पे आ जाओ। राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ लाइन हुज ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का मतलब स्लोप ही होता है, सो डोंट वरी। स्लोप दिया हुआ है विच पासिस थ्रू पॉइंट P एंड वेयर P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस इन द रेशियो ऑफ दिस। मतलब P के कोऑर्डिनेट्स नहीं दिए हुए हैं, हम लोग को P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, ये स्लोप यूज़ करना है और ये कोऑर्डिनेट्स यूज़ करने हैं। किस लिए? इक्वेशन फाइंड करने के लिए, इक्वेशन ऑफ द लाइन फाइंड करने के लिए। लेकिन P के कोऑर्डिनेट्स नहीं दिए गए हैं, लेकिन P के बारे में ये बताया गया है कि इट इज़ पासिंग थ्रू पॉइंट 4 - 8 एंड 12, 0 इन द रेशियो 3:1। तो अगर आप प्रीवियस चैप्टर याद करें तो यू विल गेट इन टू दैट ये तो सेक्शन फॉर्मूला है, तो उसमें से तो हम लोग सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करके हम लोग आसानी से इसके x और y कोऑर्डिनेट्स यूज़ कर सकते हैं। कैसे माय डियर किड्स? जैसे हम लोग के पास है m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, आपके पास सब कुछ है, इसको x1 y1 x2 y2 सब वैल्यूज़ पुटअप कर दीजिए, x कोऑर्डिनेट ऑफ P आ जाएगा। उसी तरीके से y का फॉर्मूला हमारे पास है माय डियर किड्स, आई डोंट नीड टू गिव यू शुड बी नोइंग बाय नाउ। सो जैसे ही आपके पास ये आ गया y कोऑर्डिनेट आ जाएगा, तो जैसे P की वैल्यू आ गई मतलब आपको स्लोप है और पॉइंट है, तो आपका इक्वेशन ऑफ लाइन इजीली बन जाएगा। कैसे बनेगा इक्वेशन ऑफ लाइन? y - y1 = mx - x1। y और x को कांस्टेंट रखना है, स्लोप आपको दिया हुआ है, और x1 और y1 आपने जो P के कोऑर्डिनेट्स निकाले वही है। क्यों P के कोऑर्डिनेट्स हैं? क्योंकि P के थ्रू आपकी लाइन पास हो रही है ना, तो P के थ्रू, जिसके थ्रू लाइन पास होती है उसके कोऑर्डिनेट्स हम लोग को लेने पड़ते हैं। ठीक है, क्लियर? सो वी हैव प्रॉब्लम नंबर 21 is done। 22, okay, in that 22 we have a triangle, it is ABC, this is 1, 4, this is 3, 2 and this is 7, 5. The coordinates of the centroid, you have to find the centroid coordinate. My dear kids, those who have done the meaning of centroid in my previous video, they know कि centroid के coordinates हम x और y कैसे find करते हैं। इन तीनों के x1, x2, x3 अपॉन 3, और y कोऑर्डिनेट कैसे बनेगा? y1, y2, y3 अपॉन 3, y1 + y2 + y3 अपॉन 3। तो उस तरीके से आपको किसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं? सेंट्रॉइड, मतलब O के कोऑर्डिनेट्स। और उसके बाद आपको फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू सेंट्रॉइड पैरेलल टू AB। अब पैरेलल टू AB एक लाइन है जो सेंट्रॉइड के थ्रू पास हो रही है, तो सेंट्रॉइड के थ्रू पास हो रही है तो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स तो हम लोग लेंगे ही इक्वेशन बनाने के लिए, ठीक है, लेकिन उसके लिए स्लोप भी लगेगा, इक्वेशन के लिए स्लोप लगेगा। स्लोप कहाँ से लेकर आए? तो ये हिंट दी गई है कि ये जो लाइन पास हो रही है वो AB के पैरेलल है, तो AB का जो स्लोप निकलेगा वही स्लोप आप इसमें ले लोगे। आ रही बात समझ में? तो वही स्लोप जो आपका AB का स्लोप निकलेगा, स्लोप निकालो AB का, जैसे हम निकालते हैं y2 - y1 अपॉन x2 - x1। आपको पता है उसके दो कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए हैं, आप स्लोप बहुत आसानी से निकाल सकोगे, और वही स्लोप आपके इस लाइन का स्लोप हो जाएगा।
आपके इस लाइन का स्लोप भी वही होगा. एंड वंस यू गॉट द वैल्यू ऑफ m एंड यू ऑलरेडी हैव द वैल्यू ऑफ योर कोऑर्डिनेट्स ऑफ o, दैट इज x1 एंड y1, तो वो कोऑर्डिनेट्स यूज करके आपको इक्वेशन ऑफ लाइन बनाना है. और इक्वेशन ऑफ लाइन में फॉर्मूला क्या आएगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1. और उसमें m आप कौन सा डालोगे, जो अभी आपने ए बी का स्लोप निकाला वही आपके इस लाइन का स्लोप होगा, तो आप वही m यूज़ करोगे. और x1 y1, x तो कांस्टेंट रखोगे, y कांस्टेंट रखोगे, और y1 और x1 आप o के जो कोऑर्डिनेट्स निकले हैं वो यूज़ करोगे. इज दैट क्लियर? ओके, योर प्रॉब्लम नंबर 23 विल बी योर होमवर्क. Okay, my dear kids, I'll stop it here. If you still find it to be doubtful video, you can just give me a message. Okay, God bless.